کراچی سے گرفتار شعیب اعظم BLF کا کمانڈر ہے۔ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ لوائقین اور بلوچ نیشنل موومنٹ نے سندھ حکومت کی پریس کانفرنس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ بلوچستان میں ٹیلی ہیلتھ سینٹر کے قیام سے عوام کو صحت کی سہولیات میسر آئیں گی۔ آغا حسن بلوچ۔ حکومت بلوچستان کا عید الاضحیٰ پر 8 سے 12 جولائی تک تعطیلات کا اعلان۔ آج جولائی کی 6 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب و اشبات۔ آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ کراچی سے گرفتار شخص شعیب اعظم BLF کا کمانڈر ہے۔ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ لوائقین اور بلوچ نیشنل موومنٹ نے سندھ حکومت کی پریس کانفرنس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ کراچی سے جبری گمشدگی کے شکار غوزدار نال کے رہائشی شعیب اعظم کے ہمشیرہ کے مطابق CTT کراچی نے ان کے لاپتہ بھائی کی گرفتاری کا دعویٰ کرتے ہوئے دہشت گرد ظاہر کر دیا ہے۔ مارنگ ولد اعظم کے مطابق ان کے بھائی شعیب اعظم کو CTT کراچی نے گزشتہ روز کراچی سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ان کے بھائی کو رواں سال 29 اپریل کو کراچی گلشن اقبال بشیر کوٹ میں واقع گھر سے خفیہ اداروں نے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا تھا۔ کراچی ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب اور رینجر افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ کی صوبائی وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے دعویٰ کیا تھا کہ کراچی یونیورسٹی دھماکے میں ملوث بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے کمانڈر کو گزشتہ روز آکس پہ کراچی سے گرفتار کر لیا ہے، جس نے دوران تفتیش انتہائی اہم انکشافات کیے اور بتایا کہ وہ کراچی میں BLF کا کمانڈر ہے۔ جامعہ کراچی دھماکے میں شاری بلوچ کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا۔ دھماکے کے 4 کردار تھے جنہیں ہم نے شناخت کر لیا ہے۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ گرفتار مشتبہ شخص نے بتایا کہ وہ اپنی تنظیم کے کمانڈر خلیل بلوچ کے حکم پر اساس تنصیبات اور کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ کی ریکی کرتا رہا۔ کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملے کرنے والے شاری بلوچ کے شوہر ابتسام بشیر اور زیب نامی شخص سے ملاقاتیں کی اور چینی اساتذہ پر حملے کو کامیاب کروایا۔ اس حوالے سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے سندھ کی وزیر اطلاع شرجیل میمن کی جبری لاپتہ شعیب احمد کے بارے میں پریس کانفرنس کو اسکرپٹڈ اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ خفیہ اداروں کی ایک تحریر کردہ اسکرپٹ پڑھ کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش میں تھا۔ ترجمان نے کہا کہ پریس کانفرنس میں ایک اہم نام BNM کے سابق چیئرمین خلیل بلوچ کا نام ہے، جسے کئی دفعہ دورہ کر اسے مسلح جدوجہد سے منسلک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح غیر اعلانیہ پابندی، کئی رہنما اور کارکنوں کی شہادت اور جبری گمشدگی کے بعد BNM کے رہنماؤں کو مسلح قرار دے کر نشانہ بنانا اور مسلح تنظیم پیش کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام کی بارہا کوشش رہی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کو کسی جعلی کیس میں نامزد کر کے جبری گمشدگی کو ایک قانونی شکل دے۔ اس پریس کانفرنس میں بھی یہی کیا گیا۔ 29 اپریل سے لاپتہ شعیب بلوچ کو شاری واقعے سے منسلک کر کے اسے 4 جولائی کو گرفتار کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا۔ کراچی میں بارش کے باوجود لاپتہ بلوچ افراد کے بازیابی کیمپ میں ورثاء کا دھرنا 11ویں روز بھی جاری۔ کراچی میں شدید بارش ہونے کے باوجود کراچی پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد سعید عمر اور عبدالحمید زیری کی لوائقین کی طرف سے 11ویں روز بھی دھرنا جاری رہا۔ بارش کے باوجود لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے لگائے گئے کیمپ میں سعید عمر اور عبدالحمید زیری کے اہل خانہ کی جانب سے کیمپ میں دھرنا جاری رکھا گیا۔ لاپتہ سعید عمر اور عبدالحمید زیری کے ورثاء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام لاپتہ افراد کو جلد بازیاب کر کے منظر عام پہ لایا جائے۔ جبری گمشدگی اور لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے ایک بار پھر لاپتہ افراد کے معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے لاپتہ افراد کے معاملے کو جلد حل کرنے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت جبری گمشدگی اور لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزیر برائے بحری امور فیصل سبزوری، وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر کو آج کے اجلاس میں شرکت کی خصوصی دعوت دی گئی تھی۔ فرحت اللہ بابر نے لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کمیٹی کے سامنے اپنی تجاویز رکھے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور فیصل سبزوری نے بھی اپنی تجاویز کمیٹی کے سامنے رکھی۔ کمیٹی نے ایک بار پھر معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے لاپتہ افراد کے معاملے کو جلد حل کرنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی کے آئندہ اجلاسوں میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی شرکت کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ لاپتہ افراد سے متعلق کام کرنے والے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں اور ریاستی اداروں کے نمائندوں کو بھی آئندہ اجلاسوں میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اگلے اجلاس میں چیئرپرسن رائٹس گروپ
डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान आमना मसूद जंजुआ, सेनेटर ताहिर बिसिंजो और अवामी नेशनल पार्टी से अमीर हैदर खान होती को भी इजलास में शिरकत की दावत दी जाएगी। अलामिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ मियां रियाद हुसैन पीरज़ादा को भी इजलास में शिरकत की दावत दी जाएगी। कमेटी का अगला इजलास 14 जुलाई बरोज़ जुमेरात 3 बजे मुनक्किद होगा। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी कासिम बलोच ने गुज़िश्ता रोज़ किली सरदे में टेली हेल्थ सेंटर BHU का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि टेली हेल्थ सेंटर के क़याम से ख़वातीन को लायक बीमारियों का इस्लामाबाद से माहिर डॉक्टर्स वीडियो लिंक के ज़रिए इलाज करेंगे। ये सहूलियत अवाम और इलाके में तिब्बी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का सरदार अख्तर मेंगल की क़यादत और पार्टी कायद की वाज़ेह हिदायत है कि अवाम को तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाए। उन्होंने कहा कि ज़च्चा और बच्चा की सेहत को यकीनी बनाने और शरह अमवात को कम करने के लिए बलूचिस्तान में 14 टेली हेल्थ सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में पैदाइश के दौरान ज़च्चा और बच्चा की शरह अमवात काबिल ज़िक्र है और बलूचिस्तान में बिलखुसूस मुनासिब सेहत की सहूलियत ना होने की वजह से ये तादाद बहुत ज़्यादा है। टेली हेल्थ सेंटर से बलूचिस्तान के अवाम के लिए सेहत के शोबों में नुमाया बेहतरी आएगी और पसमानदा इलाकों के अवाम को सेहत की सहूलियत मुयसर आएंगी। हम नए मनसूबे और स्कीमें मुतारिफ़ करवा रहे हैं जो ख़वातीन और उनके ख़ानदानों को ख़ानदानी मनसूबाबंदी और महफूज ज़िंदगी के बारे में मुफीद मालूमात मुहैया करते हैं। बलूचिस्तान में अवाम की सहूलियत के लिए BHU दुक्की, BHU शदोबंद गवादर, BHU चौकी जमाली, BHU मस्तुंग, BHU वादत कॉलोनी कोयटा, BHU वाशक, BHU अबीबज़ई, BHU पंजगूर, BHU लोही लसपेला, DHQ मूसा खेल, RHC चागी, RHC आजीशेर, MCH सोराब, DHQ डेरा बुकटी और मोबाइल यूनिट कोयटा ज़च्चा और बच्चा के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अब टेली हेल्थ सर्विसेज के फ़ेज़ 3 के तहत HRC नसानी किला सैफुल्ला, HRC मंजोशोरी नसीराबाद, BHU जहांगीराबाद खोलू, BHU खाना आलम योब शेरानी, BHU जंगल खारान, BHU पंद्रान कलात, BHU ग्रोमी अरनाई, BHU इरोंग खेच, RHC मेख्तर लोरलाई, RHC जावा वारान और अजला गुज़दार बारकान और नौशकी में भी सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। नसीराबाद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कबायली रहनुमा जाँ बाग, मुलजिम फरार। नसीराबाद इलाके बालान शाख के करीब मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में कबायली रहनुमा जाँ बहाक वाक़े के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलने पर सियासी और समाजी कबायली रहनुमा सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली पहुंच गए। नसीराबाद इलाके पुलिस थाना सदर डेरा मुराद जमाली के हदूद बालान शाख पटफीडर बैरून में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके जामोट कौमी मूवमेंट के बानी और चेयरमैन मरूम मीर गुल हसन खान मंजू के बड़े फर्जंद और नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर अली हसन खान मंजू के बड़े भाई मीर तला खान मंजू को कत्ल कर दिया और फरार होने में कामयाब हो। वर्ड में 3 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाम बहाक, 3 ज़ख्मी। लेवीज़ के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ और नाच में दरअकला के रहायशी मोटरसाइकिल से गिरकर जाम बहाक हुए, जबकि वेर में मोटरसाइकिल से गिरकर एक शख्स के जाम बहाक होने और एक शख्स के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली। लेवीज़ फोर्स के मुताबिक सामान के करीब गुज़िश्ता शब कराची से गुज़दार जाने वाली वीको और ट्रालर के दरमियान तसादम से 2 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें लेवीज़ फोर्स के रेस्क्यू के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। लापता इखलाक वल्द नवाज़ अली बलोच के खाना ने कोयटा प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं और मेरी फैमिली आवारान से इतना तवील सफ़र करके सूबाई शहर कोयटा इसलिए पहुँचे हैं कि हम आप तक मेरे भाई की जबरी गुमशुदगी की खबर पहुँचाएँ। मेरे भाई इखलाक वल्द नवाज़ अली, जिन्हें 16 जून 2021 को अफसर चेक पोस्ट कहेज तुरबत से शिनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद हिरासत में लेकर लापता कर दिया गया था, जो ताहाल बाजियाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि मावारान तीरतेज से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा भाई जो यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान से BA करने के बाद घर के माली हालात को मद्देनज़र रख कर पहले अब चौकी और फिर केच में तेल के कारोबार से मुंसलिक था। जबरी गुमशुदगी की वजह से हमारा पूरा ख़ानदान ज़हनी उलझन का शिकार हो चुका है। हम मीडिया से मुंसलिक तमाम हज़रात से दरख्वास्त करते कि हमारी इस अर्ज़ को हुकूमती नुमाइंदों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अगर मेरे भाई इखलाक बलोच ने कोई जुर्म किया है तो उसे मुमलिकत के कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए। इखलाक बलोच की ना ही किसी गिरोह से वाबस्तगी थी और ना ही वो किसी एंटी स्टेट सरगर्मी का हिस्सा रहा। लिहाजा मेरे बूढ़ी माँ को तसल्ली दे ताकि वो इस मुसीबत ज़दा कैफियत से निजात हासिल करके
चैन की नींद सो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान में मुतनाज़ा वाइस चांसलर की तकर्री के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान के तलबा गुज़िश्ता एक हफ़्ते से सरापा एहतजाज है। तलबा की जानिब से यूनिवर्सिटी की मुकम्मल तालाबंदी की गई है और यूनिवर्सिटी में तदरीसी और गैर तदरीसी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। तलबा ने यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान के गेट के सामने एहतजाजी कैंप भी लगाया है। तलबा का मौक़िफ़ ये है कि पंजगूर की सरजमी पर ऐसे शख्स को बतौर वाइस चांसलर किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे जो तनाज़ात की ज़द हो, जिसके ऊपर कई स्कैंडल्स हों, जिन्हें नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर यूनिवर्सिटी से निकाला गया हो। मुतनाज़ा वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ तलबा को पूरे पंजगूर से हर किस्म की हिमायत हासिल है। इस दौरान पंजगूर के तमाम सियासी जमातें, तलबा तंजीमें, सिविल सोसाइटीज़ और दीगर इदारे भी तलबा की पर पूरी हिमायत में हैं। हुकूमत बलूचिस्तान का ईद उल अज़हा पर 8 से 12 जुलाई तक तातीलात का ऐलान। महकमा मुलाज़मत-ए अमूमी नज़्म व नस्क के एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद की प्रेस रिलीज़ के तसलसल में हुकूमत बलूचिस्तान ने भी ईद उल अज़हा के मौके पर तातीलात का ऐलान कर दिया है। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये तातीलात 8 ta 12 जुलाई 2020 बरोज़ जुम्मा तमंगल होगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। एडवोकेट इकबाल अहमद कासी, एडवोकेट शौकत अली रखशानी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस तैनाती की मंजूरी दी गई। एडवोकेट गुल हसन तरीन, मोहम्मद आमिर नवाज राना और सरदार अहमद अलीमी की भी बतौर एडिशनल जजेस तैनाती की मंजूरी दी गई। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात की रोशनी में वज़ीर आज़म के एडवाइस पर दी। सदर मुमलिकत ने तानियातों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175A के तहत दी। अब आइए सुनते हैं इलाकाई और आलमी खबरें मकबूल नासिर से। तुर्किया की लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मूसा ओसीवर ने GHQ का दौरा किया और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक दोनों अस्करी रहनुमाओं के दरमियान सिक्योरिटी, खित्ते के उमूर, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR ने अपने बयान में बताया कि मुलाकात में पाक तुर्किया दिफाई शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। जनरल नदीम रज़ा और कमांडर जनरल मूसा ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। वफाकी जर्मन काबीना तारिकीन वतन से मुतालिक मुल्की क़वानीन में इस्लाहात के लिए एक नए प्रोग्राम की आज बुध के रोज़ मंजूरी देने वाली है। इस हवाले से तैयार किए गए मसवदे क़ानून का मकसद बेहतर समाजी इंज़माम का मुज़ाहरा करने वाले और पनाह के मुतलाशी ऐसे गैर मुल्कियों को जर्मनी में रिहाइश का हक़ देना है जिन्हें अबूरी तौर पर क़याम की इजाज़त दी गई हो। ऐसे गैर मुल्कियों को आइंदा 1 साल के लिए खुसूसी रिहाइशी परमिट जारी किए जा सकेंगे ताकि वो मुल्क में मुस्तकिल क़याम की इजाज़त के लिए दरकार जर्मन ज़ुबान पर काफ़ी अबूर समेत अपनी काबिलियत में ज़रूरी इजाफ़ा कर सकें। इस मसवदे क़ानून के मुताबिक मखसूस जराइम के मुर्तकब गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा हिरासती मुद्दत भी मौजूदा 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी जाएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपनी काबीना के 2 अरकान के यकदम मुस्ताफ़ी हो जाने के चंद ही घंटे बाद खाली होने वाले हुकूमती ओहदों पर नए वज़रा नामज़द कर दिए। वज़ीर आज़म ने अपने चीफ़ ऑफ स्टाफ STO बार्कले को नया वज़ीर सेहत और अब तक वज़ीर तालीम के फ़राइज़ अंजाम देने वाले नाज़िम ज़हावी को नया वज़ीर ख़जाना नामज़द कर दिया है। इन नामज़दगियों से कुछ देर पहले इन दोनों ओहदों पर फ़ाइज़ वज़रा साजिद जावेद और ऋषि सोनाक ने तकरीबन बैक वक्त इस्तीफ़ा देकर लंदन हुकूमत को सियासी बहरान से दो चार कर दिया था। दोनों साबिक़ वज़रा ने तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि बोरिस जॉनसन की वजह से हुक्मरान क़दामत पसंद जमायत की साख शदीद मुतासिर हो रही है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और YouTube चैनल विज़िट करें। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाई है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर थे कंबर मालिक बलोच। मुझे बलोचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब खैर।